Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. As we all know that today we will start with lecture number 31. You all know that we have been discussing the relationship of media with the society from a macro approach. यानी हम जो हैं वो मीडिया का और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो हम एक मैक्रो अप्रोच के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमने एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट किया हुआ है जिसको कि हम पिछले कुछ सेशंस में समझ रहे हैं. In this regard, we have tried to understand the basic elements or basic concepts of Karl Marx, and then we've continued and we've tried to understand the Frankfurt School, and then later on we did the concept of media hegemony. We started off with the political economy theory in our last session, but we will do this political economy theory in detail in this session. Political economy theory is basically very close to Karl Marx's idea of materialism and how the material forces affect the cultural production in the society through the media. यानी जो political economy theory है वो बहुत ज़्यादा close है Karl Marx के इस proposition से कि जो means of production होते हैं they are responsible for how the media works in the society. As we've done it earlier कि जो न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच थी उसमें तो ये था कि there was this rebellion from the Karl Marx approach and the slight deviation from Karl Marx approach, but the political economy theory is very close to what Karl Marx said about the relationship between media and society. Basically, what political economy theory does is that it tries to see that how the economic structures and dynamics of the media industry affect the contents of the media. यानी political economy theory जो है वो basically focus करती है कि जो माशरे के अंदर जो different economic structures हैं और जो media के जो different dynamics हैं यानी जो media के अंदर जो different economic aspects जो involved हैं उसकी production में उसके distribution में उसका ताल्लुक जो है वो मीडिया के कंटेंट से क्या है. यानी ओवरऑल जो सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं वो और जो मीडिया के अंदर जो इकोनॉमिक डायनामिक्स मौजूद हैं ये दोनों चीज़ें किस तरह से मीडिया कंटेंट को अफेक्ट करती हैं. दिस इज द फोकस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी एंड द good part about this political economy theory is that it bases its proposition in the light of empirical results or empirical tests. यानी कि जो हमने critical theories पढ़ी थी they were based on mere observations and no empirical research work could be taken out to prove what these scholars were saying. यानी जो हमने फ्रैंकफर्ट स्कूल को पढ़ा और जो मीडिया हेजेमनी की थ्योरी को हमने समझा उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने मैक्रो अप्रोच इस्तेमाल की थी और मैक्रो अप्रोच जो है वो ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन स्कॉलर्स की अप्रोच है और उसमें ये है कि when they propound a theory what they try to do is that they come up with certain observations and then they try to tell us the relationship between the media and the society as we saw it in the मैजिक बुलेट थ्योरी के मैजिक बुलेट थ्योरी में भी ये मैक्रो अप्रोच थी कि जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक ब्रॉडली एक ब्रॉड ऑब्जर्वेशन के बाद इस बात को सामने किया कि मीडिया का जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी. हालांकि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, कोई सर्वे मेथड के साथ कोई रिजल्ट्स नहीं इकट्ठे किए गए थे, बट इट वाज एन ऑब्जर्वेशन of different scholars. इसी को सामने रखकर ही जो बाकी जो क्रिटिकल स्कूल है वो भी इसी तरह से बात करते हैं कि जो मीडिया का एक बहुत ही नेगेटिव किरदार है माशरे के लोगों के ऊपर और वो जो नेगेटिव किरदार है वो इस तरह से है कि जो मीडिया है इट बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग the viewpoints of the elite or of the powerful. लेकिन इनकी जो ये observation है it is not based on any empirical evidence but it is based on observation. The point where political economy theory deviates from the previous theories that we have done is that this theory propounds its propositions in the light of
definite empirical results. And what they say is that you have to just study the structure of the ownership. You have to study who is controlling the media and how the market forces work or operate. And if you can do that, then if you study the content of the media, you can relate the two. स्टडीज के स्कॉलर्स जो हैं वो ये बात को प्रोपाउंड करते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी और मीडिया के जो डायनामिक्स हैं, इकोनॉमिक डायनामिक्स जो हैं वो किस तरह से कंटेंट ऑफ द मीडिया को अफेक्ट करते हैं, तो यू कैन डू इट थ्रू योर 5 सेंसेस, थ्रू एम्पिरिकल टेस्ट्स. और वो एम्पिरिकल टेस्ट क्या हैं कि आप सिर्फ देखें कि ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, कौन लोग जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और कौन सी मार्केट फोर्सेस हैं जो कि मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट कर रही हैं. यानी उन्होंने एक रिसर्च बेस्ड ये थ्योरी सामने रखी. यानी इस थ्योरी को उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसको एक कॉन्क्रीट रिजल्ट्स को सामने रखकर तो इस थ्योरी को आगे बढ़ाया. What they basically focused on was that there are 3 economic processes that have increased the media corporations. यानी जब वो ये कहते हैं कि हमें रिसर्च करना चाहिए या एक रिसर्चर को ये देखना चाहिए कि कौन कंट्रोल कर रहा है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को और कौन ओन कर रहा है या किसकी इजारादारी है, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी मीडिया के अंदर. और ये जो 3 मीडिया में चीज़ें हैं ये बड़ी ऑब्वियस हैं, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी रिकॉर्डेड. नाउ व्हाट आर दोज 3 थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस मीडिया कॉर्पोरेशंस? नंबर 1 is internationalization, number 2 is integration, and number 3 is diversification. Now what we mean by internationalization is that media is just not confined to one country or one nation. In fact, reach of media is now global, and it's just not the reach of the media that is global. In fact, you will see that there are different media setups in different countries also. यानी जो मीडिया है वो सिर्फ एक मुल्क में नहीं है या एक नेशन को कैटर नहीं कर रहा है, बल्कि मीडिया की जो रीच है वो अपने मुल्क से बाहर निकल गई है और इसकी रीच जो है इट इज़ इंटरनेशनल and it is operating globally. एक तो ये एस्पेक्ट है which you can observe, which you can see. Secondly, मीडिया की जो कॉर्पोरेशंस हैं उसमें जो एक और जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व है वो ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रही है. किस तरह से? उस इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट्स को और समझना होगा. वो ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. What we mean by vertical integration is that the media is acquiring all aspects of production and distribution of a single type of media product. यानी कि there is only one owner which is acquiring all the aspects of media production and distribution. यानी जो भी प्रोग्राम बन रहा है उसमें जितने भी एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं उसका जो ओनर है वो एक आदमी या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन हो. सपोजिंग अभी ये कोई फिल्म बन रही हो तो फिल्म के अंदर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो कैमरा इन्वॉल्व है या उसकी प्रोडक्शन के अंदर जो दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दैट कैन बी द लाइट्स ऑल्सो, दैट कैन बी द एडिटिंग मशीन ऑल्सो, दैट कैन बी द एडिटिंग इटसेल्फ ऑल्सो. प्लस जब इसके बाद जब ये प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाकी जो एस्पेक्ट्स हों या उसको जो आगे एडवर्टाइजिंग के भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं ये दे आर ऑल ओन्ड बाय वन ओनर or by one organization. So this is called vertical integration. And second aspect is the horizontal integration. Now, in the horizontal integration, what we mean is that one company buys different kinds of media, concentrating ownership across different kinds of media. यानी जो horizontal integration है वो ये है कि एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एक किस्म के मीडियम को ओन नहीं करता, बल्कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया को ओन करता है. यानी ही इज एट वन टाइम मे बी ओनर ऑफ अ टीवी चैनल, एट द सेम टाइम ओनर ऑफ अ न्यूज़पेपर,
may be an owner of a radio station or a publishing house or some magazines. तो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है उसका मतलब ये हो गया कि एक वक्त एक ओनर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया को ओन करता हो. इस तरह से क्या होगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हर मीडिया के ऊपर या हर मीडियम के ऊपर जो है वो नजर आता होगा, या उसकी जो भी आइडियोलॉजी है वो आपको हर मीडियम पे नजर आती होगी. तीसरा जो मीडिया कॉर्पोरेशन के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है डाइवर्सिफिकेशन. ये डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है कि जो मीडिया है उसके जो ओनर्स हैं वो सिर्फ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया के ओनर्स ना हो, बल्कि वो दूसरी कंपनीज के भी ओनर्स हों which might be and might not be related to media. So it is a cross media ownership which is controlled by non-media companies. जैसे कि अगर कोई शख्स जो है वो अगर किसी टीवी चैनल का मालिक है तो साथ में वो किसी और सिगरेट की कंपनी का भी मालिक हो सकता है, वो किसी फूड चेन के का या रेस्टोरेंट्स का जो है उसका भी मालिक हो सकता है, वो किसी तेल की इंडस्ट्री का भी मालिक हो सकता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द ओनर ऑफ द मीडिया is owning only one kind of business. It is quite possible that he is owning different kinds of business. So these are the three processes that are involved in this growing media corporation. One is internationalization, number two is integration, और उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो है डाइवर्सिफिकेशन. यानी एक जरूरी नहीं है कि जो मीडिया का ओनर हो वो सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ही का ओनर हो, बल्कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज का या दूसरी प्रोडक्ट्स का भी ओनर हो सकता है. अभी जो तीनों चीजें हैं ये तीनों चीजें जो वो मीडिया के कंटेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं. दिस इज व्हाट we'll study in the coming lectures. The interesting thing is that because of these three processes, the reach of the media has become so much that according to one commentator, the great media empires spanning the world have subjugated more territory in a decade than Alexander the Great or Genghis Khan did it in a lifetime. यानी इतने बड़े जो कॉन्करर्स जो हैं जिन्होंने के इतने बड़े एरियाज को कॉन्कर किया, बट इट टुक देयर लाइफ टाइम टू डू दैट, उसके मुकाबले में जो मीडिया है उसने जिस तरह से टेरिटरी को in the last 10 years have covered the whole world, it is amazing. It is far more than the physical territory that was covered by these conquerors. So the reach of the media has become much more because of the three processes that we have studied earlier. Now, the reason why this media has grown so much, the reason for this thing is that that when we studied the free market economy, we came up with this idea: if there is a free market economy, there is more competition, people will have more choice, and it will give a more quality product. यानी free market का जो concept उसमें ये है कि आप open market में आए और आप अपना product जो है वो सामने लेकर आए. लोगों को अगर आप quality product देते हैं तो वो पॉपुलर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी जो प्राइस है वो भी रेगुलेट हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कंपटीशन भी होगा, उस कंपटीशन की वजह से जो है वो क्वालिटी भी मेंटेन होगी. तो इस चीज को सामने रख कर मीडिया के अंदर ये तमाम प्रोसेसेस जो है उनको इनकरेज किया गया, यानी इंटरनेशनलाइजेशन को, इंटीग्रेशन को और डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेसेस को इनकरेज किया गया, बिकॉज द background is the free market economy, and the free market economy, as I just mentioned to you, encourages that that the media corporations should expand. Now, why again they insist that they should expand is that this probably would give people more choices to decide from. It would increase their information level. When they will have more information, they can make their choices better. And similarly, if the product that is shown in the media is not of good quality, people are going to reject it.
So the more products that come into the market and there is more competition in the market, the people will accept or reject certain content of the media or the product of the media, and so automatically the weak programs will go away and the good and the quality programs will remain in the market, and this will further improve the quality of the programs. This is the philosophy behind this free market economy, and then again the philosophy behind the growth of media organizations. इसी चीज को सामने रख के जो मीडिया स्कॉलर हैं ग्राहम मर्डॉक, उन्होंने ये तो कहा कि हाँ, जब आप मीडिया कॉर्पोरेशन की ग्रोथ होती है इन द थ्री प्रोसेसेस दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, तो यस, अपेरेंटली it seems that people have more access to information. It seems that people now will have more choices, but it is really not like this. In fact, one should be able to differentiate between plurality and diversity. We have studied the concept of plurality earlier also. और वो plurality का मतलब हमने यूँ समझा था कि जितने भी वॉइसेस हैं माशरे में, जितने भी लोगों की जो भी आवाज़ें हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो सामने आए, या जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, they should be given an opportunity to come and work in the free market economy. तो ग्राहम मर्डॉक ने कहा कि जी, कहने को तो ये प्लूरलिटी है, लेकिन असल में इसमें आप जो ये क्लेम करते हैं कि इस प्लूरलिटी की वजह से डाइवर्सिटी आएगी, वो डाइवर्सिटी नहीं है। यानी हर एक की ओपिनियन जो है वो सामने नहीं आएगी, ऑल्दो यू आर सेइंग दैट देयर इज प्लूरलिटी, बट इन फैक्ट देयर इज नो डाइवर्सिटी. एंड ही सेज इट इन दीज वर्ड्स. He says, there may be more communication goods and services in circulation, but many of them are versions of the same product in a variety of packages. यानी वो ये कहता है कि हमें अपेरेंटली तो ये लगता है कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, हमें डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं हमें नज़र आ रहे हैं, और हमारे लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन असल में बात वही है, और डिफरेंट पैकेजेस में या उसकी जो पैकिंग है वो डिफरेंट है. उसको आप इस तरह से समझें कि कहने को तो जी, वी हैव सो मेनी चैनल्स एंड वी हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, बट when you really look into it very deeply, you will realize that these programs have a common theme. The dramas have the common theme, the films have a common theme, the talk shows more or less have a common theme, but they are given in a different package, or they are shown to you as if they are showing you something very different, something very unique. But if one looks very critically and closely, one finds out, all the programs are basically giving you one kind of information, because the ownership of these programs is owned by one person or one organization. Anyway, he further emphasizes that this concentration of media corporations, this integration of media corporation is limiting the diversity, and it is a threat to democracy. जब आप जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एक ही ओनर रखेंगे, या तो उसमें क्या होगा कि आप जो हैं, जो मुख्तलिफ लोगों की जो आवाज़ें उनको आप रोक रहे हैं, बल्कि आप एक ओनर की आवाज़ को ज़्यादा सामने लेकर आ रहे हैं. इसको मर्डॉक जो है वो इस तरह से कहता है. वो कहता है कि जी, जो 4 तरीके हैं जिससे कि जो मीडिया है वो लिमिट करता है लोगों की माशरे में जो डाइवर्सिटी है उसको, और जो डेमोक्रेसी है उसके लिए थ्रेट किस तरह से ये कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया जो है वो क्रिएट करता है. वो 4 तरीके क्या हैं? नंबर 1, द रिडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑन द लार्जेस्ट मार्केट. यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया कॉर्पोरेशन होते हैं तो उसमें सबसे पहला जो कि डाइवर्सिटी को कंट्रोल करती है वो ये है
कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो कम से कम होते जाते हैं। इसको हम ऐसे ले लेते हैं जैसे हम कहते हैं ना, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। यानी जो छोटे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they cannot take the pressures of these larger media corporations, and they ultimately get merged into these larger media organizations. So the voices of these smaller independent media organizations are killed, or they are gradually merged with these larger media corporations. ये सब कुछ क्यों होता है? In the name of competition, in the name of how the market forces act. ये जो मर्जर्स की जो बात है, ये तो आपको मोरलेस हर ऑर्गेनाइजेशंस में नजर आ रही है, लेकिन मीडिया के अंदर जब ये बहुत होना शुरू हो जाए तो उसमें फिर अगेन खतरा यही होता है कि जी आपको जो आवाज सुनाई दे जाएगी, कहने को आपको डिफरेंट चैनल्स में देखने को मिल रहे हैं, या आप कहने को डिफरेंट मीडियम के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन असल में क्योंकि उनका ओनर एक है तो आपको उसकी जो ओपिनियन है वही रिफ्लेक्ट हो रही है इन तमाम डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। सेकंड कॉन्सिक्वेंस जो है ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया कॉर्पोरेशन जो है वो ये है कि अवॉइडेंस ऑफ रिस्क्स रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट इन लेस प्रॉफिटेबल मीडिया टास्क्स। यानी जो दूसरा नुकसान जो इस कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया कॉर्पोरेशन की वजह से होता है वो ये होता है कि जो मीडिया के जब प्रोडक्ट या कंटेंट बन रहे होते हैं तो दे डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस विद एनी न्यू प्रोडक्ट व्हिच might not help them in increasing their profits. Yani they would not go into any such venture which would bring them less profits. So अब ये होगा कि जब इस किस्म की चीजें शुरू होंगी तो मे बी it will affect documentary filmmaking, it might affect the investigative reporting, because इन चीजों में हो सकता है कि जो मीडिया ओनर्स हैं या जो मीडिया के प्रोप्राइटर्स हैं वो ये देखते हैं कि अगर हम इस तरह का एक कोई प्रोग्राम बनाएंगे या इस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं अबाउट ऑन सर्टेन सोशल इश्यूज, it might not be as profitable, so they are not ready to take any chances and bring diversity in what they are producing. इसमें कुछ हम ऐसे नहीं कहते कि जिस किस्म की फॉर्मूला मूवीज बन जाती हैं या फॉर्मूला प्रोग्राम्स बनने लग जाते हैं या फॉर्मूला ड्रामास बन जाते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आजकल जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर टॉक शोज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, एंड मोर और लेस इन सब का जो नेचर है ऑफ द प्रोग्राम है इट इज़ द सेम, and how one is cross-examined and again examined and cross-examined, and it has become a very popular thing. And what you see is that this popular formula is now more or less prevalent in all the channels. So now the owners of a media organization might not like to deviate from these formula programs or these formula talk shows, because they feel that this is one reason for their popularity, and this is giving them more income, or it is more profit oriented to have such programs. इसमें जो एडवर्टाइजिंग का रोल है वो भी हम करेंगे कि जैसे जैसे आपके प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी होती है तो उतना ही ज़्यादा आपके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आपके पास आते हैं और आपका जो है वो रेवेन्यू जो इनकम है वो बढ़ता है। वी विल डू दिस थिंग इन डिटेल इन द कमिंग सेशन। ये इसमें फिर जब आप डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को भी सप्रेस करते हैं और यू डू नॉट गो फॉर एनी सच प्रोग्राम्स व्हिच माइट बी लेस प्रॉफिट मेकिंग, तो उसमें क्या होता है कि वन टेंड्स टू सपोर्ट द जनरल बिजनेस इंटरेस्ट्स एंड वन टेंड्स टू सप्रेस द कवरेज दैट इज पोटेंशियली एम्बैरेसिंग। यानी जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होगा या मीडिया कॉर्पोरेशंस होगा तो उसमें जो आपके जनरल बिजनेस इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करती हैं जो बातें, उनको ज़्यादा पब्लिसिटी दी जाएगी या उनको ज़्यादा सामने लाया जाएगा, और वो ओपिनियंस जो कि बिजनेस इंटरेस्ट को कैटर नहीं करते हैं
या वो तो उसको फिर वो सप्रेस किया जाएगा या उसको साइडलाइन किया जाएगा और या उसको बिल्कुल ही दिखाया नहीं जाएगा. तीसरा कॉन्सिक्वेंस है, there is a neglect of smaller and poorer sectors of the potential audience by attempting to maximize the complementarities or synergies between various components of their media and business operations. Media owners can limit people's perspectives. यानी कि इस मीडिया कॉर्पोरेशन के इंटीग्रेशन की वजह से इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप के पास एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मार्केट हो ऑडियंस की. ये जो मैंने टर्म अभी इस्तेमाल की इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई आर वी कॉलिंग दिस मार्केट ऑफ ऑडियंसेस, बिकॉज द ऑडियंस आर गेटिंग एक्सपोज टू सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स एंड दे आर द मार्केट टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट व्हिच इज शोन इन द मीडिया थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स. तो जो अगर मीडिया के पास एक सेटल्ड ऑडियंस हो या एक मार्केट हो तो फिर वो कोशिश नहीं करता कि वो उन दूसरे ऑडियंसेस को कैटर करे जो कि उन प्रोडक्ट्स को खरीदने की सलाहियत नहीं रखता जिसकी की एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो मीडिया में आ रहे हैं. यानी मीडिया इज not ready to take risks of trying to reach new kind of audiences because they feel that that audience is not required for their programs to, as they do not have the ability to buy those products that are advertised in the media. तो इस तरह से वो एक किस्म के जो पूरे सेक्टर ऑफ ऑडियंस है उसको निग्लेक्ट भी करते, क्योंकि पुअर सेक्टर ऑफ द ऑडियंस है उसके पास वो चीज़ें खरीदने की सलाहियत ही नहीं है. तो वो उनको उस मार्केट को कैप्चर करने की फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब उनमें सलाहियत ही नहीं है चीज़ें खरीदने की तो फिर उनको उनकी नीड्स को कैटर करने की भी ज़रूरत नहीं है इन द मीडिया, और इसलिए दिस सेक्टर इज निग्लेक्टेड. So this way, what is happening is we are limiting the perspectives of the people. यानी हम वो चीज दिखा रहे हैं एक खास क्लास को जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है, और इस चीज को जब हम दिखाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम completely neglect कर देते हैं. This is according to Murdoch. Murdoch जो है इस चीज को further explain इस तरह से करता है. He says, consistently to exclude those voices lacking economic power or resources. The underlying logic of cost operates systematically, consolidating the position of groups already established in the main mass media markets and excluding those groups who lack the capital base required for those least likely to criticize the prevailing distribution of wealth and power. Conversely, those most likely to challenge these arrangements are unable to publicize their dissent or opposition because they cannot command resources needed for effective communication to a broad audience. यानी इसमें दो बातें सामने आती हैं. एक ये है कि जो मीडिया है वो ऐसे कंटेंट ही डिवाइस नहीं करता जो कि उस सेक्टर या उस पूरे सेक्टर ऑफ द सोसाइटी को कैटर करे, क्योंकि मीडिया दिखता है कि इस सेक्टर के पास बाइंग कैपेसिटी तो है नहीं, तो जो एडवर्टाइजर है वो इसमें क्यों अट्रैक्ट हो. दूसरा इस मीडिया कॉर्पोरेशन की इंटीग्रेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है अकॉर्डिंग टू मर्डॉक वो ये भी है कि मीडिया के अंदर जो डिसेंटिंग व्यूज होते हैं उनके लिए उनको भी कैपिटलिस्टिक मार्केट फोर्सेस जो है वो उनको चांस नहीं देती हैं कि उनके डिसेंटिंग व्यूज जो है वो सामने आए. So the result is that the market forces do not allow the dissenting voices to come forward, and those who already own a media and they are working for more profit, they have such a control over the media organizations that they do not let those people who have less money
to come forward and express their viewpoints. And the fourth consequence of this concentration of media ownership is that often politically unbalanced range of news media are projected. Media use their resources to support certain political or ideological causes. और इसके बाद जो फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीनिंग्स होती हैं ऑफ द ओनर और जो या प्रोप्राइटर्स की, दैट इज वेरी ग्लेयरिंगली रिफ्लेक्टेड इन द कंटेंट ऑफ द मीडिया. यानी एक खास एक पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो भी सामने आती है और जो डिसेंटिंग व्यू है वो भी पीछे चला जाता है, क्योंकि जो ओनर की जो आइडियोलॉजी है वो it sort of overshadows the dissenting views which are prevalent in the society. इसकी जो एग्जाम्पल मर्डॉक और ग्राहम, जो दो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी के, अब उसको बड़े मजे से इस तरह से डिस्कस करते हैं कि जो बैटमैन है वो बेसिकली एक कॉमिक कैरेक्टर है. जो वो कॉमिक कैरेक्टर है उसके ओनर भी टाइम वार्नर कंपनी है, और फिर उसके बाद इस कॉमिक कैरेक्टर से जो मूवी बनती है उसके भी ओनर यही कंपनी है. फिर इस मूवी के अंदर जो साउंड ट्रैक्स इस्तेमाल होते हैं उसको भी बनाने में, उसको भी स्प्रेड करने में जो कंपनी इन्वॉल्व है वो भी इसी टाइम वार्नर के अंदर आती है. फिर इससे रिलेटेड जो टॉयज हैं वो भी, जो इंडस्ट्री बनाती है, जो टॉयज बनाती है वो भी इसी कंपनी के अंदर आती है. यानी कि एक जो कैरेक्टर है उसको इतने डिफरेंट तरीकों से मार्केट में लेके आया जा रहा है, और उस तमाम चीजों का जो प्रॉफिट है वो एक कंपनी को जा रहा है. यानी एक कॉमिक कैरेक्टर व्हिच इज पब्लिश इन अ कॉमिक, उसके जो रेवेन्यूज है दैट इज गोइंग टू वन ओनर. फिर उस मूवी के जो मूवी में जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो भी एक कंपनी को जा रहे हैं. उस मूवी के जो गाने हैं उसके जो प्रॉफिट है वो भी उसी कंपनी को जा रहे हैं. उससे रिलेटेड जो टॉयज बनाए जा रहे हैं, जिसको मतलब यानी बेसिकली मर्चेंडाइजिंग द चिल्ड्रन, कि उसमें आपने जो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया है, और बच्चे जब वो खिलौनों को खरीदते हैं तो उसके भी जो इनकम है वो भी एक ही कंपनी को जा रहा है. इसमें आपको जो मैंने आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया वो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि किस तरह से एक ही कंपनी जो है वो ना सिर्फ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया को ओन करती है, बल्कि वो उससे के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज को भी ओन करती है, जो कि जिससे कि उसको फायदा मिल रहा होता है. Now let's study how ownership is linked with control. For political economists such as Murdoch and Golding, who have documented the expansion of the global media giants, there is a direct relationship between ownership and control. Now what we mean by this thing is कि किस तरह से जो ownership है वो मीडिया को कंट्रोल करती है. इसमें दो अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू दीज स्कॉलर्स हैं. वन इज the instrumental, that is the direct intervention, and second is structural, which is economic structures shape the activities of media owner. यानी मर्डॉक जो है वो in 1980 वो आइडेंटिफाई करता है कि there are two ways of analyzing the relationship between the owners and the control that they exercise on the media. One is instrumental and the other one is structural. Let's study these one by one. What we understand by instrumental approach is, in this approach, the scholars think that the owners or the proprietors of any media directly intervene in the content of the media. Owners and managers are seen to conspire to determine which person, which facts, which versions of the facts and which ideas shall reach the public. And according to this approach, जो owners हैं of the media, they directly intervene and they get themselves directly involved in deciding that which person should be given coverage, which facts should be given coverage, which versions of the facts should be given coverage.
and which ideas should reach the people. So they are very, very interfering when it comes to formulating of any message in the media. The policy of the owners is seen as working as a whole to produce a press that strongly defends private enterprise and may be biased towards the political leanings of the proprietor. When the managers or the proprietors or the owners of the media are so directly intervening in the formulation of a media content, so what is the philosophy behind it? One is that they want to increase their profits because they feel that if certain fact or if a certain person or if a certain idea is perpetuated in the media, it will give them more profits, or because they have their own political bias or they have their own political leaning which they want to put forward. और इन दोनों चीजों को सामने रखकर वो मीडिया के कंटेंट के अंदर वो ओनर जो है वो डायरेक्टली इंटरफेयर करता है. सो द आइडिया इज कि when these owners are directly intervening in the production of the media contents, so it would have an immediate effect on the workers which are working in the media organization. यानी जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके वो अपनी सोच के साथ कोई मीडिया प्रोडक्ट को नहीं बनाते, बल्कि क्योंकि मीडिया ओनर की इतनी डायरेक्ट इंटरवेंशन है तो उसकी वजह से एक बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट है ऑन द वे द वर्कर्स इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन प्रोग्राम. जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है मिलीबैंड. ही सेज दैट we should just not focus about how the owners influence the particular papers, but we should also focus on the ways in which the press as a whole represents the interest of the ruling class. यानी जो मिलीबैंड एक स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ हमें ओनर्स का डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो मीडिया कंटेंट पे सिर्फ वो नहीं देखना चाहिए, बल्कि देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द मीडिया. इस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच के अंदर वो ये फिर बात करता है, वो ये कहता है कि जो दूसरे प्रेशर्स हैं जो कि मीडिया कंटेंट को बनाने में खास उनका असर होता है, वो ये है द एडवर्टाइजिंग सेंसरशिप. यानी एडवर्टाइजिंग सेंसरशिप से मुराद ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि आप कोई कंटेंट मीडिया में बनाना चाह रहे हैं जो कि आपके एडवर्टाइजर्स को पसंद ना आए, तो इसलिए आप वो कंटेंट जो है वो अपने मीडिया में ना बनाएं. सपोजिंग अगर आपका जो मेन रेवेन्यू मीडिया का है वो है सिगरेट्स की जो इश्तिहारात हैं, दे आर द मेन रेवेन्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो व्हाट हैपेंस इज कि maybe these advertisers would directly intervene and they'll say कि don't publish or don't broadcast such programs which would say that smoking is bad for health, or don't make any program that would show that smoking has adversarial effect on or it would have any adversarial effect on our product. So this is a direct intervention of the advertising agencies or of the advertisers. It can be smoking, it can be any other multinational organizations जो हैं, they also play a very important role in controlling the message of the media directly. If any content in the media affects their interest, they can directly say that we will not give you ads because you are publishing things which are adversarial to our interest. इसमें एडवर्टाइजिंग के अंदर हम गवर्नमेंट के जो एड्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा अगर कोई न्यूज़ या कोई मीडिया जो है वो बहुत हेवीली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के एड्स के ऊपर, तो ये ऐन मुमकिन है कि जो गवर्नमेंट है वो भी डिक्टेट करे कि मीडिया के जो कंटेंट हैं वो ऐसे हों जो कि सूट करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या गवर्नमेंट इंटरेस्ट्स को. So, according to Miliband, there is one direct intervention of the advertisers also on the content of the media, apart from the owner's viewpoint or intervention in the
production of a media content. Another, the consensual values of people working in the media. यानी जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी एक अपनी एक आइडियोलॉजी हो जाए और उसमें उनका एक कंसेंसस हो जाए और वो कहें कि जी हमने बात को हमेशा इसी तरह से ही करना है. तो ये भी एक किस्म का प्रेशर है ऑन द मीडिया कंटेंट. यानी इन लोगों का जो कि मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके कि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनमें आपस में एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो कि जी हमने जो भी मैसेज कन्वे करना है उसमें ये आइडियोलॉजी या ये बात जो है वो ज्यादा सामने हो. और तीसरा प्रेशर अकॉर्डिंग टू मिलीबैंड है कि वो है ऑफिशियल क्लाइमेट. यानी आपका क्लाइमेट ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इज सच that more or less everybody is conservative or conformist, and they tend to toe the line of the media owner's philosophy or policy, and they don't question it. तो ये प्रेशर है, इसमें क्या होता है कि जी उन लोगों को मालूम भी नहीं है और वो उसी तरह से कंटेंट को बना रहे हैं जैसे कि मीडिया ओनर्स की आइडियोलॉजी है. सो दे आर कंफॉर्मिस्ट and they don't question about the way that they are making a certain program. Thus, instrumental approaches focus on the control exercised by individual capitalists to extend their own interests and ways in which the media as a whole work to reinforce the general interests of a capitalist class. यानी कि इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो ओनर्स ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द मीडिया कंटेंट, और वो जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें उनके कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट भी होते हैं और उनके उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं. इन कंट्रास्ट टू दिस, द अदर अप्रोच इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच. इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच, critics say that the instrumental approach is very simplistic. यानी इसके जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है उसमें इन्होंने जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मीडिया है वो बिल्कुल रहमो करम पे है मीडिया ऑर्गेनाइजर्स, मीडिया ओनर्स के, और उसमें जो है वो और कोई और फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं. जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है उसमें ये कहा जाता है कि जो मीडिया है इट सिंपली एक्ट्स एज अ conveyor belt for the ideas of the ruling capitalistic class. And what the critics say is that this instrumental approach simply ignores the role of the working journalists and the role of the working media workers who resist this intervention. And then they say that it's not possible for one owner to intervene in such a large media organization and to interfere in every product of the media. So another objection of the critics on the instrumental approach is that जो मीडिया ओनर्स हैं या एक जो मीडिया ओनर अगर है उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो मीडिया की एम्पायर्स बन गई हैं उनको जाती तौर पे खुद से कंट्रोल करे और देख सके. तो इस चीज को भी हमें सामने रखना चाहिए. और तीसरी जो क्रिटिसिज्म है इस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच में वो ये है कि हम ये भी देखते हैं कि इट इज ऑफन दैट द इंटरवेंशन ऑफ द ओनर्स इन द एडिटोरियल पॉलिसी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एडिटोरियल ऑफ द मीडिया. यानी कि ये भी हमें मुशाहिदे में आता है कि जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजर की जो भी उसकी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो हमें मीडिया के एडिटोरियल पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हों या वो नजर आए. ये तीन मेजर जो है वो क्रिटिसिज्म्स हुई ऑन दिस इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच व्हेन इट केम टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ द ओनर्स ऑफ द मीडिया एंड देयर कंट्रोल ऑन द कंटेंट ऑफ द मीडिया. Number one was it ignores the ability of the journalists to resist the intervention of the owners. Number two is that it is not possible that one owner can see all the activities or can interfere in all the activities of the media productions. And number three is that it is not always
seen that the direct intervention of the political ideology or the policy of the owner is reflected in the content of the media. Keeping these three things in mind, what has happened is that these critics say that we need to understand how the media content is regulated by looking at the overall modes of production in the society. And this overall mode of production जो है, that limits the choices and the actions of the press proprietors and its personnel, whatever their origin, social connections or personal commitments are. यानी जो overall economic structure है माशरे का, वो ना सिर्फ मीडिया ओनर्स को बल्कि मीडिया पर्सनल्स को, चाहे उनकी कोई भी बैकग्राउंड हो, उन सब के ऊपर उसका असर हो रहा होता है और वो चीज़ें जो हैं वो मीडिया कंटेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं. यानी इट इज़ नॉट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द मीडिया ओनर्स, इट इज़ द जनरल इकोनॉमिक फोर्सेस in the society which is determining how the owner should behave, how the personnel of the media organization should behave when they are constructing a certain message in the media. So, according to this structural approach, analysis is not centered on the activities and interests of individual owners, but on the constraints and limitations placed on owners, managers and workers by the nature of the capitalist economy. यानी इसमें जो structural approach के जो scholars हैं वो इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि जो मीडिया ओनर्स हैं उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है मीडिया के कंटेंट्स के बनाने में, बल्कि जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो असरअंदाज होती हैं मीडिया ओनर के ऊपर, मीडिया में जो जितने लोग वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर, और फिर उसी को सामने रखकर कोई भी मीडिया का जो प्रोडक्ट है वो बनता है. इसको ग्राहम और मर्डॉक ने कुछ इस तरह से कहा है. दे से दैट one should examine the ways in which the policies and operations of corporation are limited by the general dynamics of media industries and capitalist economies. यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ऑफ द सोसाइटी वो क्या हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी क्या हैं कि जी इट हैज टू बी प्रॉफिट ओरिएंटेड, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना है और ये प्रॉफिट जो है हमें कंपटीशन जो मार्केट में है उसका मुकाबला करके हासिल करना है. तो ये जो दो चीजें हैं, यानी डिमांड फॉर कंपटीशन एंड फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, दैट डिटरमिन्स, दैट कंट्रोल्स द वे द owners and the media workers work in a media organization. Murdoch argues that there is no need for owners to intervene directly because the logic of the prevailing market structure ensures that by and large the output endorses rather than opposes their general interest. And what Graham and Murdoch are saying is that these owners don't have to directly intervene because जो नेचर ऑफ मार्केट ऐसा है कि उसमें इन लोगों को काम ही इस तरह से करना है कि एक खास क्लास को खुद के इंटरेस्ट को खुद ही केटर किया जाता रहता है. यानी क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन कंपटीशन एंड ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, ये दोनों सोल ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब ये सोल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ओनर के भी बैक ऑफ द माइंड में है, वो वर्कर्स के भी बैक ऑफ द माइंड में है, और इसलिए जब भी वो कोई मीडिया का प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन दोनों चीज़ों को खुद ब खुद ही जहन में रखते हैं और फिर उसको सामने रखकर ही वो कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते हैं. तो यानी कि किसी की भी डायरेक्ट इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच से इस तरह से फ़र्क हो गई कि इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच कहती है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है of media owners in the content of the media, और जो structural approach है उसमें जो है scholars वो ये कहते हैं कि there is no need for a direct intervention, बल्कि जो market में जो ये दो elements हैं
कंपटीशन के और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के, वो खुद ही जो ओनर्स और जो वर्कर्स हैं उनको एक ख़ास किस्म के प्रोग्राम्स बनाने की तरफ मुतवज्जा करते हैं, और वो इस तरह से खुद ही जो है वो एक खास कैपिटलिस्टिक क्लास के इंटरेस्ट जो है वो केटर होते रहते हैं. Graham ने in 1990 he argues that it is only by understanding the organization of the industry that we can comprehend why certain media products are made and distributed as well as their content and form. यानी ग्राहम ने ये कहा कि हमें जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में समझना होगा, और इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को हमने उन मार्केट फोर्सेस को सामने रखकर समझना होगा जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया प्रोग्राम्स में जिनका का एक खास किरदार है. We will deal with these things in more detail in the coming sessions. We will see how advertising plays an important role in the production of different programs in the media, and we will also see that how this political economy theory is can be applied in this new changing media scenario where we have this new media concept, जैसे कि जिसमें कि हम इंटरनेट को भी शामिल करते हैं. Till then, thank you very much and खुदा हाफिज.